केंद्रीय बजट में नवो आयकर स्लेब कर्यो घोषित 3 लाख ताईनी आयकर मुक्त बजट में केंद्र सरकार नो प्राथमिकताओं करी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट माथे दीनी प्रतिक्रिया कया ओ बजट गांव गरीब और किसान ने समर्पित इनसु देशना विकास ने मिलेली नवी गति। केंद्रीय बजट ने ले राज्य मंत्री दीना आप आपरी प्रतिक्रिया में कया बजट में दिखाई देवे है विकसित भारत 2047 नो विजन। केंद्रीय बजट माथे उद्योगपतियां और एमएसएमई जगत में खुशी रो माहौल कया बजट में हरेक वर्ग ने मिलियो प्रोत्साहन। और प्रदेश में फेरू मानसून सक्रिय होबासु बारिश रो दौर जारी लाडला 24 घंटा में राजधानी जयपुर रा कई ठोरा माथे भी तेज बारिश। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरां विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री कानिसु पेश करया गया बजट में नवो आयकर स्लेब घोषित करियो है। 3 लाख ताईरी आय ने कर मुक्त राख्यो गयो है। वटे ही 307 लाख माथे 5%, 710 लाख माथे 10%, 1012 लाख माथे 15%, 1215 लाख माथे 20% और 15 लाख सु ऊपर री सालाना आय माथे 30% टैक्स रो प्रावधान करियो गयो है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में केंद्र सरकार री 9 प्राथमिकतावां तय की है। इनमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास और अगली पीढ़ी रा सुधार शामिल है। वित्त मंत्री कहा कि आवता 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं ने 1 साल री इंटर्नशिप कराई जावेली। इंटर्नशिप रे तौर माते हर एक युवाओं ने हर महीने 5,000 रुपया दिया जावेला। वित्त मंत्री बजट में पीएम आवास योजना रे तहत देश में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाबारी घोषणा की है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 5 बरस बढ़ावा रो भी ऐलान करियो है। इनसु 80 करोड़ लोगों ने मुफ्त में राशन मिलेलो। The tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein,
I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the Finance Bill by simplifying the tax regime for charities, tedious rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and tedious. Two tax exemption regimes. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कया के बजट में रोजगार और कौशल विकास माटे ध्यान दियो गयो है। बजट रे पछे प्रेस वार्ता में वे कहो कि नवी कर व्यवस्था वेतन भोगिया ने लाभ देवेला। वे कहो कि केंद्र सरकार निवेश ने आकर्षित करवा खातर कोशिश कर रही है। इनके तहत बजट में कई प्रावधान किया गया है। To capture that is everything in the budget. So each letter actually highlights the important points of the budget, and we can elaborate more on that a bit later. But employment captures everything to do with this budget, and I would like you to, for a moment, spend a time on it. And deriving from that, everything which has been said in the budget falls in place. हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए, और सिंपल टैक्स रजीम की ओर अगर हम जा रहे हैं ये रिव्यू के द्वारा, वो ही हमारी मकसद होगा कि सिंपल कर दो। ओल्ड टैक्स रजीम को सिंपल करने के रास्ते पर ही ये नया टैक्स रजीम आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट माथे प्रतिक्रिया देता थका कया कि ओ बजट गांव गरीब और किसाना रे खातर है। इनसु देश रा विकास ने नवी गति मिलेली। वे कया कि बजट में युवावा माथे खासो ध्यान दियो गयो है। प्रधानमंत्री बजट ने मध्यम वर्ग ने ताकत देवा वालो बतायो है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है
इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। केंद्रीय बजट ने ले राज्य मंत्री आपरी प्रतिक्रिया देवता थका कयो कि इन बजट में विकसित भारत 2047 रो विजन दिखाई देवे है। बजट में रोजगार सृजन खातर कौशल विकास ने बढ़ावो दियो गयो है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस भारत को, हिंदुस्तान को 2047 का विकसित हिंदुस्तान बनाने का संकल्प जो लिया था उसको पूरा करने का बजट आज सदन में रखा है। तो मैं राजस्थान प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ऐतिहासिक बजट दिया है। राजस्थान समेत पूरे भारतवर्ष में आने वाले समय में हम लोग इस बजट के माध्यम से विकसित भारत की कल्पना को साकार भी करेंगे, क्योंकि बजट आने वाले वर्ष के वित्तीय वर्ष सहित आने वाले 5 सालों के लिए होता है। इसलिए सरकार की मंशा ये है कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाएं, जहां सबका साथ सबका विकास की बात हो और वर्ष 2027 तक हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनकर खड़ा हो। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी का फोकस है और आजादी के अमृत काल में वर्ष 2047 के विजन को सामने रखते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और सबके सपनों को साकार करने का काम करेंगे। ये बजट राष्ट्र कल्याण वाला बजट है, सर्वांगीण विकास वाला बजट है और सब वर्गों को राहत देने वाला बजट है। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि इसमें युवाओं के लिए जो रोजगार करना चाहते हैं वो मुद्रा लोन को 10 लाख की बजाय 20 लाख कर दिया है। देश के सभी वर्गों के लोग खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं। आज जो केंद्र का बजट आया है, ये इसको आप सिर्फ 2024 का ना माने, ये 2047 का विजन है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक देश को दिशा दी गई है, उसी को देखते हुए इस बजट को अपने सबको देखना चाहिए। जिन 4 जातियों का मोदी जी जिक्र करते हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, ऐसा कोई भी वर्ग कहीं पर अछूता न रह जाए, इन सबको केंद्र बिंदु मानते हुए ही इस बजट को दिया गया है। केंद्रीय बजट माथे उद्योगपति आपरी प्रतिक्रिया देवता थका कयो कि ओ बजट उद्योग और रोजगार ने बढ़ावा देवा वालों है। वे कहो कि बजट से हरेक वर्ग ने प्रोत्साहन मिल रही है। वे कैंसर की कुछ एक दवाओं माथे आयात शुल्क खत्म करवाने चोखो कदम बतायो है। ये पूरा बजट युवा, एमएसएमई व कृषि को समर्पित है। एमएसएमई को लेकर सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की है। हमारी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसमें भी फंड का इजाफा किया गया। इससे लोन आसानी से इनको मिल पाएंगे। इसी प्रकार से जो फैक्ट्री में नए जितने भी लेबर लगेंगे उनको 3000 रुपए तक की छूट सरकार 2 वर्ष तक पीएफ में देने वाली है। ये भी बहुत कदम स्वागत योग्य है। इसी प्रकार से फूड टेस्टिंग लैब जो पहले BIS के तहत अपनी फैक्ट्री में लगाने की बाध्यता थी, अभी जोन स्तर पर सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। इसी प्रकार लेबर के लिए हाउसिंग कॉलोनी भी विकसित की जाएगी, ये भी स्वागत योग्य कदम है। और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए साप्ताहिक हाट की व्यवस्था की गई है, ये भी मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है। तीसरे टर्म का जो पहला बजट रखा गया है वह वास्तव में MSME के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि MSME के लिए सरकार ने घोषणा की है कि विशेष प्रावधान किए गए हैं। MSME के लिए सबसे बड़ा लाभ देने वाला कार्य ये होगा, जो इंपोर्ट ड्यूटी है कुछ प्रोडक्ट पे बढ़ाई गई है, जिससे घरेलू उत्पाद पे और घरेलू उत्पाद को ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके। उसके पश्चात स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो बजट दिया गया है, उससे घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्किल्ड लेबर जो मिलेगी उसका भी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए जो विशेष प्रावधान किए हैं, नए लगने वालों को 1 माह की सैलरी भी अतिरिक्त दी जाएगी। तो
एक नए उत्साह और जोश के साथ युवा कार्य में लगेगा। कई चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी, जो टूल्स या रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, कुछ चीजों पे उस पे कमी भी की है, जिससे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फिनिश्ड माल बाहर से इंपोर्ट न करके कुछ पुर्जे जो स्पेशली इंपोर्ट हो रहे हैं उन पे कुछ ड्यूटी कम की है। इनकम टैक्स पे भी मध्यम वर्ग के लिए काफी राहत दी है। तो इस तरह से ये बजट सब तरह के वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। एक हाट बाजार का जो एक अभिनव प्रयोग चालू कर रहे हैं, अभिनव जो पहले भी कई जमाने में हमारे यहाँ हाट बाजार लगते थे, अब अलग अलग क्षेत्रों में 100 हाट बाजार की जो प्रस्तावना, साप्ताहिक हाट बाजार की प्रस्तावना की है उन्होंने, उससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अर्थव्यवस्था में सुधार में सहायक होगा। एग्रीकल्चर के लिए भी उन्होंने स्टोरेज के लिए, रिसर्च के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए और मार्केटिंग के लिए भी बहुत बड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड उन्होंने इसमें रखा है। तो एग्रीकल्चर, उद्योग, एमएसएमई और आयकर सभी जगह सभी उन्होंने जो किया है, मध्यम वर्ग को सभी को राहत पहुंचाने की कोशिश की है और ये अपने आप में एक बजट माइलस्टोन साबित होगा आने वाले वर्षों में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कानीसू पेश કર્યા ગયા બજેટને લઈ ટોકરી જનતા આપણી પ્રતિક્રિયામાં દીની है। वे कहो कि वो बजट मध्यम वर्ग, किसान और महिलावार साथ ही नौकरी पेशा लोगों ने ध्यान में राखने पेश કર્યો गयो है। केंद्रीय बजट में किसानों खासो ध्यान राख्यो गयो है। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी ढेर सारी चीजें, 3 लाख करोड़ का बजट पारित किया गया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। मोबाइल सस्ते हुए हैं और भी अब देखें आगे और भी क्या बारीकियां निकल कर आती हैं। बाकी अभी तक तो यही लग रहा है कि मध्यम वर्ग और महिलाओं के लिए बजट अच्छा पारित हुआ है। किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। बाकी व्यापार लोगों के लिए जो व्यापार स्थिति जो बिगड़ रही है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, जिससे कि 5 लाख से बढ़ के 20 लाख रुपए जो हुआ है ये काफ़ी अच्छा राहत के लिए रहा है व्यापारियों के लिए। मध्यम वर्ग के लिए बजट बहुत अच्छा है। मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने बहुत कुछ दे दिया, किसानों को राहत पैकेज दे दिया, मुद्रा लोन को 20 लाख तक कर दिया। टैक्स के अंदर भी 6 लाख की जगह 7 लाख तक का स्लैब करके 10% की श्रेणी में ले दिया। पूरा मोबाइल सस्ते हो गए और कई सारे राजस्थान को भी डबल पैकेज मिल गया और राजस्थान के लिए बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए टैक्स जो है मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए और गरीब के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों के लिए फायदेमंद बजट है और इसमें 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है और किसान सम्मान निधि में जो पहले बढ़ा दिए थे 8,000 रुपये कर दिए, इसलिए किसानों को अच्छा बजट है, मिला जुला बहुत बढ़िया रहेगा बजट। जयपुर में आयकर विभाग कानीसू आज जवाहर सर्किल सू टैक्स वॉकथॉन रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें आयकर विभाग रा अधिकारी, कर्मचारियों समेत कई लोग भाग लीनो। इन मौका माथे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नरेश कुमार बालोदिया सगला करदाताओं और कर्मचारियों ने बधाई दीनी। कार्यक्रम के दौरान JLN मार्ग स्थापित स्मृति वन में 200 पौधा लगाया गया। राजस्थान के जयपुर के सभी निवासियों को, करदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर हम ये संदेश फैलाना चाहते हैं कि हर करदाता राष्ट्र निर्माता है और इसके दौरान हमने आज वॉकेथॉन किया जिसमें हम आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और बाकी कुछ जनता ने भी भाग लिया। फिर यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं जिससे कि हमारी धरती का ग्रीन कवर बढ़े और हरियाली बढ़े और ऑक्सीजन बढ़े, जिससे कि धरती का तापमान कम हो और एक बेहतर धरती हमारी बन सके। रिटायर्ड ऑफिसर्स की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा प्रयास है विभाग की तरफ से करदाताओं से जुड़ने के लिए का और ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा भी एक मानव एक फेस है। ये नहीं है कि हम कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी सोसाइटी, अपने समाज से दूर हैं। हम समाज का एक पार्ट है और हम चाहते हैं कि करदाता स्वेच्छा से कर भरे और चैन की नींद सोए। बहुत चूरू में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला में एसओजी कानीसू गिरफ्तार आरोपी विवेक भांबू के खिलाफ कार्रवाई करता थका पुलिस प्रशासन वाराघड़ ने बुलडोजर सू नष्ट कर दिनो है। नगर परिषद कानीसू करीगी इन कार्रवाई में बड़ी संख्या में पुलिस रो जाब्तो तैनात रियो। बतायो जा रही है कि ओगर अवैध रूप से नगर परिषद री 4 दीवारी में बनियोड़ो है।
पेपर माफिया में गिरफ्तार शुदा मुलजिम विवेक भामू का मकान है, जो नगर परिषद की इमदाद से पुलिस ने प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें इसको अवैध निर्माण देखते हुए नगर परिषद की तरफ से ध्वस्त किया गया। इसका कंप्लीट विवरण तो अपन नगर परिषद से प्राप्त करें, लेकिन जो ये मकान व बाउंड्री जो बनी हुई हैं, ये सड़क सीमा और उसके अंतर्गत आई। बीकानेर में कारगिल विजय दिवसरा उपलक्ष्य में भारतीय सेना कानीसू युवाओं ने सेना भर्ती खातर प्रेरित करवा खातर हथियारा और उपकरणारो प्रदर्शन कर्यो गयो। कार्यक्रम में युद्ध लड़वा वाला सैनिकारी वीरता और साहस ने प्रदर्शित करवा खातर कारगिल युद्ध माथे वृत्त चित्र दिखायो गयो। इन दौरान अग्निवीर योजना के जरिए भारतीय सेना में शामिल होबा माथे एक प्रस्तुतिकरण भी कर्यो गयो। तो आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेज की तरफ ध्यान दो आप। फोर्सेज आपको देश की सेवा करने का आपको मौका मिलता है। दूसरा, लाइफ भी बिल्कुल अलग है। जो आप दूसरी सिविल सर्विसेज देख रहे हो, ये लाइफ बिल्कुल अलग है। फोर्सेज की लाइफ बिल्कुल अलग है। वो तो समाज ही एक अलग है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की तरफ, देश की सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। युवा अच्छे से अच्छा युवा देश की सेवा में भर्ती होना चाहिए। आज हम यहाँ कारगिल विजय महोत्सव में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस महोत्सव का हिस्सा बने हैं। यहाँ पर बहुत ही भव्य प्रदर्शनी थी, बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि आज भी हमारी हिंदुस्तान की फौज हमारे लिए कितना कुछ करती है। सच में अद्भुत दृश्य था और यहाँ बहुत ही आनंद आया। They have welcomed us in this camp set on the occasion of 25th anniversary of the Kargil Vijay Divas, and we wholeheartedly support and salute our army warriors who sacrificed themselves in the Kargil war on 26 July 1999. The whole war was so crucial for reclaiming the Kargil district which is in Jammu and Kashmir of India. बहुत ही महान दिवस है क्योंकि 527 हमारे जवान जो थे वो इसमें शहीद हुए थे और उनकी बहादुरी को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, बट ये एक दिन इसके लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए आज से ही हमने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। कारगिल दिवस पे हम आज ये फंक्शन रख रहे हैं फिर उन जवानों के लिए जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए शहीद हुए हैं। हम बहुत इंस्पायर हैं इन सब जवानों से, इन सब से, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और उनके लिए आज हमने ये सब प्रोग्राम रखा है, उनकी वीरता के लिए, उनके लिए। बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र में आज प्रसार शिक्षा निदेशालय कोटा कृषि विश्वविद्यालय कानीसू 31वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति री बैठक आयोजित करेगी। इन बैठक में कृषि विश्वविद्यालय कोटारा प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर शशि कुमार जैन, अनुसंधान डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप सिंह धाकड़ समेत कृषि विज्ञान रा अधिकारी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मौजूद रिया। बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र कानीसू संचालित सरकार री योजनावा माथे कर्या गया कामा माथे विस्तार सु चर्चा करेगी। इन बैठक रो खास उद्देश्य किसाना री आय दोगुणी करबारे साथे साथे किसाना ने प्रगतिशील बनानो है। जो हम जिले में आयोजित करते हैं उसका जो मूल्यांकन करते हैं और उसमें कोई भी सुझाव हो, जिसमें हमारी सलाहकार समिति में सभी विभागों के, कृषि विभाग के, पशुपालन विभाग के, मत्स्य विभाग के, एनजीओज, प्रोग्रेसिव फार्मर्स सभी लोग होते हैं। तो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से क्या अपेक्षाएं हैं, वो उसके ऊपर हम एक बैठक रखते हैं। किसानों की आय दुगनी करने का ये हमारे काफ़ी पहले से भारत सरकार का एक मिशन रहा है और इसमें हमारी कृषि विश्वविद्यालय कोटा और विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र और सभी विभागों का भी एक में अथक प्रयास रहे हैं। इसमें विभिन्न पहलू हैं। आय किसी एक कंपोनेंट से दुगनी नहीं होगी। विभिन्न जो कृषि के अवधारणा हैं उनको हमें काम में लेना होगा। फसल उत्पादन है, आपके उद्यान है, डेयरी है, पशुपालन है, तो जिसमें हमारी एक समन्वित खेती प्रणाली एक अवधारणा है, उसमें इन सभी चीज़ों का समावेश करके अगर हम करते हैं तो आय में वृद्धि निश्चित होगी। कृषि वैज्ञानिक केंद्र बूंदी में 31वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजन हुई, जिसमें नई नई जानकारियों की जानकारी दी गई और खेती में खर्चा कम करके अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए और पशुपालन में भी ध्यान देकर अपना मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए, इसकी जानकारी दी गई।
બારાસુ ગુજરિયા રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ 27 माथे दो बसारी भिड़ंत वेगी। इन हादसा में 2 लोगों की मौत होगी, वटे ही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुई गया। हादसो सड़क माथे बैठी गाय ने बचाबारी वजह से हुई। गंभीर घायलारो 12 जिला अस्पताल में इलाज चाल रही है। सूचना मिलवा माथे पुलिस प्रशासन मौका पर पुग्या और बसा ने हटार यातायात ने सुचारू करियो। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर घटना माते गंभीरता जतावता थका कहो कि सड़क सु आवारा पशुओं ने हटावा खातर पहले भी निर्देश दिया जा चुका है। नहीं, तेज नहीं था वो। ये पीछे वाले ने दी है पीछे से टक्कर। गाय आगे थी सामने पर। आगे गाय के झुंड बैठे थे ना, तो गाय वाले ने तो बचाया। अच्छा, गाय बचाने के लिए वहाँ उसने तो है ना, ड्राइवर ने तो बचाने के चक्कर में स्लो कर ली थी, बिल्कुल निकाली साइड से गाड़ी। और पीछे वाले ने एकदम कट मारा, क्या करा पता नहीं। झालावाड़ रोड ओवरब्रिज है, इसके ऊपर 2 बसेस जो हैं ये 12 ही जा रही थी। एक आगे कोई आवारा पशु आने की वजह से गाड़ी एक उसमें उसको टक्कर मार करके शायद बचने की कोशिश कर रही थी। उसने स्पीड धीरे की और अपनी लेन से हटके दूसरी लेन में आने की बात थी, तो पीछे वाली गाड़ी उससे आके टकरा गई। अगली गाड़ी जो है वो पलट गई और उसमें अब तक की जानकारी में करीब 7-8 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। तो उनको सरकारी अस्पताल तुरंत एम्बुलेंस और अधिकारीगण यहाँ आ गए। माननीय कलेक्टर साहब और मैं भी यहाँ पर पहुँचे, देखा, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया। एक क्रेन से गाड़ी को अधर करके एक व्यक्ति नीचे दबे हुए थे, उनको भी निकाला। लोगों ने भी यहाँ हमारा सहयोग किया। जो NIC का सॉफ्टवेयर उसमें इसकी एंट्री भी करी जाएगी और देखा जाएगा कि कारण क्या है। कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से ऐसी कोई पुनरावृत्ति इस चीज़ की ना हो। आवारा पशु जैसे आपको पता है कि जो मानसून का सीज़न होता है तो आसपास से आकर के, क्योंकि कीचड़ होता है, उस कारण आके बैठ जाते हैं। इसमें हमने कल ही जो है इंस्ट्रक्शन जारी करे थे NHAI के दोनों जो डिवीज़न, जो वो ग्वालियर डिवीज़न है और कोटा डिवीज़न को, एक तो रिफ्लेक्टर रात के लिए लगाएंगे और दिन भर वो पेट्रोलिंग करके उनको यहाँ से हटाएंगे। तो जो आज एक्सीडेंट हुआ इसकी जाँच के बाद जैसी भी उसमें निष्कर्ष आएगा उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। खबर मौसम सु प्रदेश में एक फेरू मानसून सक्रिय होवा सु बारिश रो दौर शुरू हो गयो है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में राजधानी जयपुर कई ठोरा माथे तेज बिरखा हुई। इनसु सड़का माथे पानी भर गयो, जिनसु वाहन चालका ने घनी परेशानियों रो सामनो करनो पड़ रही है। मौसम विभाग आज भरतपुर और जयपुर संभाग समेत शेखावटी खेतर में कुछ एक ठोरा माथे भारी बारिश होबारी संभावना जताई है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य समाचार एक फेरू। केंद्रीय बजट में नवो आयकर स्लेब करियो गयो घोषित। 3 लाख ताईरी आय आयकर मुक्त। बजट में केंद्र सरकार 9 प्राथमिकतावां करी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट माथे दीनी प्रतिक्रिया कया ओ बजट गांव गरीब और किसान ने समर्पित। इनसु देश का विकास ने मिलेली नवी गति। केंद्रीय बजट ने ले राज्य रा मंत्री दीना आप आपरी प्रतिक्रियावां कया बजट में दिखाई देवे है विकसित भारत 2047 रो विजन। केंद्रीय बजट माथे उद्योगपतियां और MSME जगत में खुशी रो माहौल कया बजट में हर एक वर्ग ने मिलियो है प्रोत्साहन। और प्रदेश में एक फेरू मानसून सक्रिय होवा सु बारिश दौर जारी। लाडला 24 घंटा में राजधानी जयपुर कई ठोरा माथे हुई तेज बिरखा। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।